ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਤ ਭਗਤੀ, ਤਤਵ ਗਿਆਨ, ਕਰੁਣਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਭੰਡਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, आप में से अधिकांश लोग श्री ब्रह्मा जी,
श्री विष्णु जी और श्री शंकर की भक्ति करते होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपका भक्ति स्तर क्या है? माखन लाल जी, उत्तर प्रदेश के एक साधारण निवासी, कहते हैं कि जब वे इन देवताओं की भक्ति करते थे, उनका भक्ति मार्ग शून्य था। जी हाँ दर्शकों, आपने सही सुना, शून्य। भले ही वे भक्ति करते थे, लेकिन कोई आध्यात्मिक ज्ञान या शांति प्राप्त नहीं हुई थी। जीवन में संघर्ष था, संतानहीनता, आर्थिक तंगी और नशे की बुरी लत ने उन्हें जकड़ लिया था। डॉक्टरों पर पैसा खर्च हुआ, पर लाभ कुछ नहीं। फिर एक दिन उन्हें एक आध्यात्मिक पुस्तक मिली, जिससे उन्हें सही मार्गदर्शन मिला। इस ज्ञान ने न सिर्फ उनके जीवन की दिशा बदली, बल्कि उनकी आंतरिक शांति और उनकी आत्मा को पूर्ण जागृत भी किया। धीरे धीरे उनकी सभी समस्याएं दूर हो गईं। आज माखन लाल जी एक सुखी और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं और उनके जीवन में आध्यात्मिक समृद्धि आ चुकी है। तो आइए सुनते हैं माखन लाल जी के जीवन की यह अद्भुत कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? माखन लाल। माखन लाल जी, आप कहाँ से हैं? बिलसंडा जिला पीलीभीत, यूपी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 3/7/2012 को नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम भक्ति मार्ग को बिल्कुल जानते भी नहीं थे, बिल्कुल शून्य थे। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति चलती है उसी में परंपरा हम लोग लगे रहते थे थोड़ा बहुत, बस। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? कारण ये बना सर, हम दुकान पर बैठे थे, हमें पुस्तक प्राप्त हुई ज्ञान गंगा। वो मैंने पढ़ी, उसको समझा और फिर मैं आश्रम पे गया, संत रामपाल जी के नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? सर्वप्रथम आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। दूसरा लाभ ये हुआ, हमारे कोई संतान नहीं थी, 10-12 साल करीब शादी को हो गए थे। मैंने पीलीभीत में, बरेली में अच्छे ऊँचों अपनी औकात के हिसाब से हर डॉक्टर को दिखाया, लेकिन 1-1.5 लाख रुपए खराब कर दिया। धीरे धीरे हमारी परिस्थिति इतनी ख़राब होती चली गई कि अपना जीवन निर्वाह चलाना भी मुश्किल हो गया। तो मैंने वो मतलब दवाई छोड़ दी। संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक मिली, उसके माध्यम से मैंने भक्तों के अनुभव देखे, तो मैं मात्र सिर्फ उस उद्देश्य से पहुंचा कि मुझे एक संतान हो जाए। सिर्फ इस हिसाब से मैं 2012 को गुरु जी से नाम दीक्षा ली। नाम लेने के बाद गुरु जी से मैंने प्रार्थना की, गुरु जी हमारे को, संत रामपाल जी महाराज जी गुरु जी हमारे हैं, उनसे मैंने कहा गुरु जी मेरा कोई संतान नहीं है। गुरु जी ने कहा बेटा भक्ति कर, संतान हो जाएगी। ऐसे चलते रहे, भक्ति करते रहे, परमात्मा की ऐसी दया हुई, एक लड़की का जन्म हुआ। पीलीभीत SK अग्रवाल के यहाँ बड़े ऑपरेशन से, तो वहाँ मैं गया, मेरे परिवार से कोई नहीं गया था, मैं अकेला था। मैंने और भक्तों को फ़ोन किया, मैंने भगत जी ऐसी बात है, पहला चांस, मुझे इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। तो वहाँ लेके गए जब SK अग्रवाल के यहाँ पीलीभीत, तो बड़े ऑपरेशन से लड़की का जन्म हुआ। उसी दौरान डॉक्टर कह रहे थे इसे 3 बोतल का खून की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं वहाँ अकेला था, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो परमात्मा को मन ही मन में याद किया, है मालिक अब मैं क्या करूँ, इस शरीर में इतना खून भी नहीं मैं दे सकूँ अपनी पत्नी को। तो कोई बात नहीं, परमात्मा ने वो जैसे तैसे समाधान किया, ना कोई ज़रूरत पड़ी ना कोई बात हुई। साधारण ऑपरेशन से लड़की का जन्म हुआ। अभी कुछ दिन पहले संत रामपाल जी से मैंने प्रार्थना करी थी कि गुरुजी मुझे मकान और प्लस दुकान बनवानी है, मेरे पास हैसियत इतनी नहीं है, मैं कैसे बनवाऊं। और दुकान मकान मेरा बिल्कुल कंडम था, पिताजी ने बनवाया, वो पिताजी भी गुजर गए। अब मकान दुकान तो कंडम हो ही जाएगी। ये कंडम होने के बाद फिर गुरुजी ने कहा बेटा तू बनवा, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने वो स्टार्ट कर दिया। परमात्मा की दया से वो आज टनाटर मकान दुकान दोनों कंप्लीट हो गए। अब सारा परिवार उसी में रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मालिक की दया से। सर, क्या आप नशा भी करते थे? मैं दारू भी पीता था, मांस मदिरा भी खाता था, और गुटखे तो इतना सा खाता था कि शाम को या दिन में खाना खाऊं, खाना के तुरंत ऐसी तलब लगती थी कि पुड़िया, इतनी पुड़िया, इतनी पुड़िया। रात को सोते समय मुंह में डाल के 1-2 सो जाते थे और सुबह थूकते थे। आधी पद्दी तो कभी कभी तो पेट में भी चली जाती होगी, इतना मतलब गुटखा तो बहुत ज़्यादा ही मैं खाता था। इधर उधर के तीर पड़ोस के दुकानदार भी कहते थे कि भाई तू बहुत पुड़िया खा रहा है, क्यों, यानी बेचने वाला है, उसको मैं पैसा दे रहा हूँ, फिर भी वो मुझसे तंग हो जाता था कि इतनी पुड़िया क्यों खाते हो। मैं क्या करूँ, तुझे मैं पैसा दे रहा हूँ, मैं पुड़िया खा रहा हूँ, तुझे क्या दिक्कत भाई। लेकिन मुझे इतने से अंदर से परेशानी होती थी, मतलब उसकी तड़प लगती थी नशे की। तो गुरुजी की दया से वो पान पुड़िया सारी छूट गई। उस दिन से आज का दिन है, मैं
अगर कोई गुटखा खाने वाला मेरी दुकान पे भी आ जाए तो उससे भी हाथ जोड़ के कहता हूँ, भाई चेहरा अपना एक साइड से कर ले, मुझे महक आती है। और एक समय वो था कि बगैर पुड़िया में रह नहीं पाता था। कोई भी कार्य करता था तो पुड़िया होना चाहिए, पुड़िया के बगैर मैं कोई कार्य भी नहीं कर सकता था, कि शरीर मेरा फेल हो जाता था। लेकिन आज इतनी दुर्गंध आती, कोई बीड़ी पीने वाला भी आ जाए तो उससे भी मैं कहता हूँ, भाई तू एक साइड हट जा, मुझे काम भी नहीं कर मिलता, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री हूँ, छोटी सी दुकान है हमारी, मैं टीवी सीडी इस चीज़ का रिपेयरिंग कारीगर हूँ। परमात्मा की दया से बहुत से ऐसे चमत्कार हुए हमारे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो लोग आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या आप ही की तरह उनके भी संतान नहीं है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए संदेश तो हम नहीं दे सकते, एक तो प्रार्थना ही कर सकते हैं हाथ जोड़ से कि संसार में हमारे जैसे जाने कितने बंदे होंगे जिनका संतान नहीं है। आज अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में चले जाएं और शास्त्र अनुकूल जो भक्ति वो देते हैं गुरुजी, अगर वो भक्ति करोगे तो 1 से 1% लाभ होगा। चाहे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, हर चीज़ की दवाई है गुरुजी के पास। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत रामपाल जी से महाराज से दीक्षा प्राप्त करने का एक आसान तरीका है। चैनल पर सत्संग आता, नीचे पीली पट्टी में नंबर आते हैं, फ़ोन नंबर, उससे आप कांटेक्ट करें। आपका फ़ोन आश्रम पे लगेगा, आश्रम से आप जिस क्षेत्र के रहने वाले होंगे आपको वहाँ का एड्रेस दे दिया जाएगा। हर जगह गुरुजी ने नामदान सेंटर खोल रखे हैं, चाहे पीलीभीत हो, बरेली हो, दिल्ली, बम्बई, कहीं भी हो, XYZ, हर जगह आप कहीं के भी रहने वाले हों आपको नाम दीक्षा निःशुल्क प्राप्त होगी, एक पैसा भी आपका खर्च नहीं होगा। धन्यवाद सर। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब नीरू ने सोचा कि ये मानती नहीं और घर ते बेघर करवाएगी, बालक रहना नहीं। उसने अपने जीवन में पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ किया थप्पड़ मारने के लिए, रोते हुए कि तू जिद्दी होगी, मैं तेरी हर बात को मानता आया हूं, इस कारण के हमारे संतान नहीं है कि तेरी आत्मा दुख ना पा जा, इसलिए तू जिद्दी होगी, हट करने लगी है, मेरी एक नहीं मानती है, और छोड़ इस बालक को। यूं हाथ किया ही था, परमात्मा बोले जो गोदी में थे, कहने लगे नीरू सावधान हो। अब नीरू रुक गया, डर गया कि दे कोई भूत है, प्रेत है, कि फरिश्ता है। बालक बोल पड़ा और कहा कि मुझे घर ले चलो, तुम्हारा कोई आपत्ति नहीं आएगी, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। और नो बालक बोल पड़े कलजा पाट जा। वो तो चुप हो गया, कत्ती सांस नहीं निकाला और आगे आगे हो लिया, अपनी धोती ठाक है। और घर पे आ गए। घर पे आते ही पता चला सबने कि इतना सुंदर बालक है, भगवान कदे देखा ना सुना। सारे नगर की औरतें आदमी देखना हुए, राजा तक भी आए, वहां का जो राजा था दिल्ली का वो भी देखने आया कि इतना सुंदर बालक। ये भूल भाल गए कि कौन हर कितने लाइनों तो बता दिया कि वहाँ लहर तारा तालाब में मिला है कमल के फूल पे। फिर परमात्मा की लीला थी, किसी के मन में दूसरी भावना नहीं आने दी। अब इसके विषय में परमात्मा की पुण्यात्मा, जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की लीला को लाखों वर्ष के बाद एज इट इज चित्रार्थ कर दिया अपनी लैंग्वेज में, चौपाइयों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से। और जो ही ऐसे ही गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे सन 1727 में, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर। और वहाँ से उनकी आत्मा को सचखंड और ऊपर के सारी व्यवस्था, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपने सतलोक में जहाँ वो मालिक रहते हैं तीसरे स्थान पर, वो सबसे परिचित करा के उनको वापस छोड़ा था और उनका ज्ञान योग खोल दिया था, उनको दिव्य दृष्टि दे दी थी। उस पिछली घटनाओं को गरीबदास साहिब जी ने वहाँ बैठे देख देख कर चलचित्र की तरह देख रहे थे और बोल रहे थे और लिखने वाला लिख रहा था।
उस वाणी को दास आपको सुनाता है। उसके अंदर कितनी प्यारा व्याख्या की है। रामानंद आनंद में काशी नगर मंझारे, देश द्राविड छोड़ कर वो आए पुरी विचार। यानी भारतवर्ष में इस काशी शहर की बहुत महिमा है, बहुत प्राचीन महिमा है। और काशी शहर के ब्राह्मण लोग ऐसे ठग हो गए थे, दुनिया को भ्रमित करते थे, ऊत बूत की पूजाएं बताते थे, जंतर मंत्र आधारित कर दिया था। महर्षि रामानंद ये ब्राह्मण थे, इन्होंने देखा उस पवित्र नगरी का हाल, तो वहाँ आकर रहने का विचार किया कि इन लोगों का कुछ उत्थान करूं, उद्धार करूं, इनकी बुद्धि उठाऊं, वेदों और गीता और पुराणों के आधार से इनको साधना बताऊं। तो स्वामी रामानंद जी ने भी बहुत सा सुधार करने की चेष्टा की। 1400 शिष्य बना दिए ऋषि के, तुम वेदों पुराणों का प्रचार करो, जैसा भी उनको ज्ञान था वो ज्ञान दिया। तो रामानंद जी भी वहां आ चुके थे। 84 बंधन कटे किन्नी कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरी। अंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं जननी जने नवाए। गरीबदास साहिब कह रहे हैं कि ये कबीर हैं जो माँ से जन्म नहीं हुआ था। अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए। अनंत कोट ब्रह्मंड में केवल बंदी छोड़, बंधनों का शत्रु यानी पाप कर्मों के काटने वाला कबीर जी है। और सो तो एक कबीर है जो जननी जने नमाए। शब्द स्वरूप साहेब धनी, शब्द सेंद सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। अब जैसे ये अज्ञानी लोग कहा करते थे कि परमात्मा निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, इसलिए वो अंतर्यामी है। यदि भगवान साकार हो तो अंतर्यामी नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, आज के विज्ञान में हमने ये भी आसानी तो समझ में आ जाएगा कि अंतर्यामी की परिभाषा होती है। जैसे एक्सरे की मशीन बाहर होता पूरा लठलों का, और वो अंदर की चेस्ट की सारी बातों को जान लेता है, उसकी बाहर सब कुछ जान लेता है, इसमें क्या क्या रोग है। अल्ट्रासाउंड की मशीन साकार है और अंतर्यामी है, वो अंदर की सब बीमारियों को ढूंढ लेती है, कहाँ डिफेक्ट है। जब एक मनुष्य की बनाई हुई एक तकनीक यानी एक यंत्र अंतर्यामी हो सकता है, भगवान जिसने मनुष्य बनाया वो अंतर्यामी नहीं हो सकता। तो वो ऐसे अंतर्यामी है कि वो उनका उस परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापक है। परमात्मा एक देशीय साकार है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। जल तल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक है, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब आदरणीय गरीबदास साहिब कहते हैं सेवक हो के उतरे, दास बन के हमारे एक नौकर की तरह रहा करते थे। सेवक हो के अवतरे, वहां से उतरे, नीचे आए, गमन करके गति करके आए। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, किस कारण से आए? जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु, सारी सृष्टि को ज्ञान देने वाले अकेले को कबीर भगवान। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदारे। अपने आत्माओं परमात्मा को नारायण कहा करते थे।
हमने सोचा करते विष्णु जी नारायण है कि जल के ऊपर से नाग की सैया के ऊपर लौट रहे हैं। असली नारायण तो ये थे कि ये जब भी लीला करते हैं जल के ऊपर आकर विराजमान होते हैं। इसके विषय में वेद क्या बताते हैं देखिएगा। पुणात्माओं, वेदों में भगवान की महिमा है और परमात्मा जो लीला करता है उनकी जीवनी इन वेदों में, ग्रंथों में विद्यमान है। देखिएगा यजुर्वेद, इसका अनुवादक है वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, अनुवादक है इसका। ये संपादक ये वही है श्री राम शर्मा जी। प्रकाशक है ब्रह्म वर्चस शांति कुंज हरिद्वार उत्तरांचल में। इसमें देखिएगा ये है 13 अध्याय 13वां अध्याय। इसके दूसरे मंत्र में इसमें अर्थ किया इसने कि जल के पृष्ठ यानी जल पर उत्पन्न अथवा जल को धारण करने वाले हैं। ये अणजानते थे, अड़ंगाक्षरावत कर दिया करते थे, फिर भी सच्चाई नहीं छुपी। ये है कि आप जल के पृष्ठ यानी जल के ऊपर उत्पन्न होते हैं, इसका अर्थ जल पर उत्पन्न होते हैं। इनको अनुवाद नहीं करना है तो वही बात समझ लो कि जैसे कोई फॉरेनर हिंदी सीख ले और वो फिर रामायण ले जावे यहाँ से अपने देश में, और उन दूसरे अंधकतीय ना आती हिंदी, उन हिंदी वो खुद हिंदी जानने वाला और रामायण की कथा से वो परिचित नहीं, अनुवाद फिर अड़ंगाए करेगा उसका, वो कुछ भी ना करना उसने। तो ऐसा कर रखा है इन्होंने। अब प्रसंग है कि काशीपुरी कष्ट किया ये उतरे अदर अधारे, मोमन को मुजरा हुआ ये जंगल में दीदारे, कोट किरण शशि भान सुधि आसन अदर विमाने, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। कहते हैं कोट कर्ण शशि भान शुद्ध है, इतना सुंदर शरीर परमात्मा का। कहते हैं और परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण है। जब उस माई ने परमात्मा को बालक रूप में गोदी में लिया, कहते हैं उसकी आत्मा और शरीर एकदम शांत हो गया। यानी सभी जो ताप थे, कोई प्रभाव था संस्कारवश, वो सब एकदम दूर भाग गया भगवान के वहाँ आते ही, और उसको एकदम नारी खुशी। पहली खुशी तो ये कि पुत्र मिल गया, और फिर भगवान जैसे बर्फ है, बर्फ पर वैसे भी हाथ रखा जा तो भी अपना प्रभाव दिखाती है, ऐसे ही परमात्मा वहाँ अपना प्रभाव दिखा रहे थे। उसके विषय में गरीबदास जी बता रहे हैं, गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया करे जैसे दमक पद्म अनंत। इतना सुंदर श्री परमात्मा का। गोद लिया मुख चूम कर, मुंह चूम्या यानी मुंह को से प्यार किया अपने बच्चे को जैसे न प्यार करते हैं। और कहते हेम रूप झलकंत, परमात्मा का इतना सुंदर शरीर जैसे वाइट, जैसे हिम माने बर्फ, हेम रूप बर्फ जैसी सुंदर सफेदी। जैसे कहते हैं ना कोई कपड़ा लेने जाते हैं बाजार में तो उसको कहते हैं भाई स्नो वाइट देना, यानी बर्फ जैसी सफेदी का। तो कहते हैं हेम रूप झलकंत और जगर मगर काया करे जानू दमके पदम अनंत। इतनी सुंदर शरीर मालिक का। कई बार देखते हैं ना, कई गोरा सा रंग हो किसी बालक का, व्यक्ति का, नो क्या करें इसका न्यारा नूर है भाई, इसके चेहरे का नूर है न्यारा है। तो वैसे वो नूर मालिक का ऐसा चमक रहा था। काशी उमटी गुल भया मोमिन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेरे, कोई तन्यो कहे देवता मत आ रहा है कोई। इतना ऐसा तो कोई बालक देखा ना सुना हमने, ऐसा शरीर मालिक का। क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में इसी परमात्मा के इसी शरीर की जानकारी है कि वो कबीर मनीषी सप्रियागात, यानी वो प्रियागात माने पहला देहधारी है, लेकिन उसका शरीर वो पहला देहधारी है।
और उसका शरीर शुक्रम अकायम ऐसनाविरम स्वयंभू परिभू। उस परमात्मा का शरीर हमारे जैसे नाड़ी माता पिता के संयोग से शुक्र से बना हुआ नहीं है। उनका शरीर बिना नाड़ियों का और हमारे जैसी पांच भौतिक काया रहित है, स्वयंभू है वो। तो वो तेज पुंज का शरीर है मालिक का, उसके विषय में यहां बता रहे हैं। काशी उमटी गुल भया, उमड़ उमड़ का सारी काशी के लोग, काशी के, और मोमिन का घर घेरे, मुसलमान का घर घेर लिया। कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर, कोई कह वरुण धर्मराय है, कोई कहत है ईश, 16 कला सुभान गति, कोई कह जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये, मेटन तीनों तापे, मोमिन का डेरा लिया, उसको कहे कबीरा बाप। कहते हैं भक्ति और मुक्ति लेकर वह उतरे थे भगवान, अपने सतलोक से चल कर आए थे। और मेटन तीनों ताप, उस मालिक की भक्ति से, उसके दिए द्वारा मंत्र से हमारे तीनों ताप नष्ट हो सकते, ना इन वेदों वर्णित विधि से नहीं हो सकते। वो 5वां वेद देने आए थे। और मोमिन का डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। एक मुसलमान के घर जन्म डेरा ला लिया, वहां आकर विराजमान हो गए, रण लागे, और फिर उसको बाप कहे, उस नीरू को पिताजी, बाबू, बापू, जो भी भाषा थी। अब दूध न पीवे न अन्न भखे, न पालने झूलनते, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। अब देखो परमात्मा की लीला, पुण्यात्मा 600 वर्ष पहले लीला की थी भगवान कबीर परमेश्वर ने, और सन 1727 में परमात्मा पहले वहां काशी में लीला करके चले गए थे सन 1518 में, और सन 1727 में फिर वहां आए, यानी लगभग 200 वर्ष के बाद सतलोक से चलकर वहां गरीबदास जी को मिले, खेतों में, गांव छुड़ानी जिला झज्जर के जंगल में। और उस समय गरीबदास जी ने ये वाणी बोली, मालिक का पूरा ज्ञान समझ गया, उनके आशीर्वाद से दिव्य दृष्टि खुल गई। उस समय क्या कहा कि दूध न पीवे न अन्न भखे। उस समय भी यही लीला की थी, परमात्मा आए थे तो कुंवारी गाय का दूध पिया था जब गरीबदास जी को मिले थे। ऐसी ही लीला करता है वो भगवान, जब यहाँ आता अतिथि रूप में रुकता है, आता है, ये लीला करता है। यही वेद बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में यही प्रमाण किया है। आगे बताते हैं, दूध न पीवे न अन्न भखे, न पलने झूलनते, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। गरीब कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईश का जो जो मात रिसाए। अब जितने भी नाम धरे उस बालक के, कोई नो कहे तो भूत से, कोई कहे प्रेत से, कोई कहे ब्रह्मा से, कोई विष्णु है, तो माई दुख पावे। अरुण ते बच्चे न लकोवे, तुम नजर लाओगे मेरे बालक के, और क्यों नाम धरो हो न्यारे न्यारे। खलक मुल्क देखण गया वहां राजा प्रजारीत, जम्बू दीप जिहाने में वो उतरे शब्द अतीत। ये जम्बू द्वीप है भारतवर्ष, कहते यहाँ पर परमात्मा अवतरित हुए। सकल कुरान फिर क्या हुआ, दुनी कहे यू देव है, देव कहते हैं ईश, ईश कहे ये पार ब्रह्म है, पूर्ण विश्व 20। अपनात्मा अब क्या होता है, जब परमात्मा 25 दिन के हो गए, ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं,
अब एक समस्या और खड़ी होगी नीमा के सामने, नीरू के सामने। नीमा कहती है कि मैं, ये बालक मरेगा, ये भगवान, साथ में मैं मरूंगी। ये बच्चा अब मरेगा, क्यों खाता पीता नहीं, 2 दिन ना खाओ, माता पिता ने भी अन्न खाना मुश्किल हो जाता है। बहुत बुरी तरह रो रही है और भगवान शंकर को याद कर रही है, क्योंकि वो शंकर के पुजारी थे, भले मुसलमान बन गए थे। और कह रही है, हे भगवान शिव जी, या तो इसको देना ही नहीं था और देकर फिर छीन रहे हो। आपकी लीला अजब है, नहीं दिया था तो सब्र था, रो रहे थे, रो पीट कर टाइम पास कर रही थी। अब ये बच्चा मरेगा, साथ मरूंगी, अगला दिन नहीं पकड़ूंगी मैं, अन्न पानी त्याग दूंगी। हृदय से ये सोचा जो परमात्मा ने देखा बुढ़िया मरेगी, अंतर्यामी कबीर साहब वहीं विराजमान। शिव जी के प्रेरणा करी कि कौन रो रहा तुझे याद करके। शिव भगवान आए वहां से साधु रूप बना के खड़े हो गए सामने। माई क्यों रो रही है? नीमा ने बताया, भगवान हे महात्मा जी, घनी दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मत सुनो मेरे दुख, न मना रो लेने दो। फिर उसने बताया कि माई बता दे, अपना दुख बताने से हल्का हो जाता है, और मेरे सत्र का कोई तेरे लिए राहत होगी तो अवश्य दूंगा। तब माई ने सारी कहानी बता दी कि पहले हमारे संतान नहीं थी, और एक दिन भगवान शिव ने ये लाल हमें दिया, ऐसे कमल के फूल पर मिला। अब 25 दिन का हो गया, कुछ नहीं खाता पीता, अब ये भी मरेगा और मैं भी मरूंगी महात्मा जी। आज उसी दिन 2 शव हमारे घर से जाएंगे। तब भगवान शंकर ने जो साधु रूप में खड़े थे कहा कि ला दिखाना तेरा बच्चा कहाँ है। बच्चे को लाई उठा के और देखा, इतना सुंदर शरीर, जैसे किलो दूध पीवे बालक डेली, इतना स्वस्थ शरीर। वो तो अमर परमात्मा थे। माई ने सोचा, श्रद्धा से बच्चे को जीवन दान दिलाने के लिए महात्मा के चरणों में डालना चाहा, ऐसे पटकना चाहा। परमात्मा आकाश में उड़ गए, आकाश में ऊपर को उठ गए और शिव जी के सिर के लेवल में आकर स्थिर हो गए हवा में। तब भगवान शिव ने, साधु ने ऐसे हाथ किया, उसकी गोदी में आ गए। तब परमात्मा ने, नवजात शिशु ने, 25 दिन के बालक ने कहा कि महाराज इसको कह दो, शिव जी कह दे इसको, एक कुंवारी गाय ले आएंगे, उस अपना हाथ आशीर्वाद से ला देना, वो दूध देवेगी। एक कोरा बर्तन मंगा लो, कुम्हार के तो ताजा। ऐसा ही किया गया। नीरू से कहा कि नीरू जा तो, भगवान शिव ने कहा साधु रूप में, एक कुंवारी गाय ला और एक कोरा बर्तन ला, तेरा बेटा दूध पिएगा। ऐसा ही किया। भगवान शंकर ने थपकी मार दी, आशीर्वाद भरा हाथ गऊ बछिया, कुंवारी बछिया के कमर पे मारा, लंबे लंबे सतन हो गए और अपने आप दूध नीचे पात्र रखते ही दूध बहने लग गया, धार बंद चली और वो पात्र भरते ही बंद हो गया। मालिक ने पिया। तो पुण्यात्मा, अब ये लीला केवल कबीर साहब ने की है और वेद बताते हैं। अब आपको वेदों प्रमाण देंगे। हमने भगवान को पहचानना, फिर भक्ति तो जमा आसान है, कुछ भी इतना करना। एक बार आपका दृढ़ विश्वास हो गया कि कबीर इज गॉड, हम गॉड को गॉड ही मानना मुश्किल हो रहा है हमने, तो फिर भक्ति ज्यादा कठिन नहीं है। ये देखिएगा ऋग्वेद, ये किसने कहाँ से छपा है, कौन है इसका प्रकाशक? प्रकाशक सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये इसके मुद्रक हैं, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये 9-10 मंडल इकट्ठा ही अनुवाद करके जल्द किया हुआ है। ऋग्वेद मंडल 9 और सूक्त 1 का प्रथम मंत्र में देखो, इसमें वेद के मूल पाठ में ऐसा ही है। और इन्होंने कहा कि हे सोम स्वभाव परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। इनकी गड़बड़ी जो थी, इन्होंने गलती की अनुवादकर्ताओं ने,
कि भगवान निराकार है, इसलिए कहीं अर्थों के अनर्थ करना चाहा, उसको सिद्ध करने के लिए यहां से दिखा रहा है दास। अब 2 नंबर मंत्र में हे परमात्मन आप, भगवान की महिमा चल रही है। और फिर तीसरे मंत्र में हे परमात्मन आप, फिर चौथे मंत्र में हे परमात्मन आप, और फिर 5वें मंत्र में हे परमात्मन तुमको, और फिर 6ठे मंत्र में हे परमात्मन। अब 7वां में याद आ गई इनके, दानंद तो निराकार बताया करता, अगर तन लिखा है इसका, उसमें लिख दिया उस पुरुष को, या ना लिखना उस परमात्मा को। और फिर 8वें में देखो, यह लिख दिया उस पुरुष को, यहाँ लिखना था उस परमात्मा को, परमेश्वर को। अब ये भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अब वर्तमान के अंदर इन वेदों की ठेकेदारी इन आर्य समाजियां ले रखी है, और महर्षि दयानंद को ये महाविद्वान मानते हैं। अब वेदों का अनुवाद इन्होंने कर रखा है। अगर दास करे तो ये न्यू कहते हैं कि रामपाल ने संस्कृत ना आती, ये सारी झूठ बोलता है, ये तो महर्षि तो विद्वान था, ये आचार्य विद्वान है, वो संस्कृत जानते थे, उनका अनुवाद सही है। अब दास पर कृपा करी परमात्मा ने कि इनकी बुद्धि फेर दी जब अनुवाद करें थे, फिर भी ये सच को छुपा नहीं सके कहीं ना कहीं, क्योंकि चोर चुरावे तुम बड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। अब दयानंद के शब्दों में दिखाते पुरुष माने क्या होता है। देखिए ये एक पुस्तक है महर्षि दयानंद सरस्वती कृत ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, इसका नाम है इतना, ऋग्वेद नहीं है यो, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका इस पुस्तक का नाम है। और ये यहाँ से प्रकाशित है, सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन 3/5 आसफ अली रोड नई दिल्ली। अब इसके 125 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये है 125 पृष्ठ, यह सृष्टि विद्या विषय संक्षेप। अच्छा इसमें यहां ये कोई अनुवाद करना चाहा इसने, भाषार्थ कर रहे हैं कि पुरुष माने यत पुरुष, ये संस्कृत है। पुरुष उसको कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहता है। अंडरस्टूड हो गया? पुरुष माने परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, पुरुष उसको कहते हैं इसके ही शब्दों में। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद के उसी मंडल में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर अब 8 और 9 में यहां इन्होंने पुरुष लिख दिया, तो पुरुष का अर्थ परमेश्वर ही होता है। देखिएगा ये ऋग्वेद हम फिर पढ़ रहे हैं, वही जो अभी आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, ये वही मंडल है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1। अब मंत्र नंबर 6 तक तो इन्हें लिख दिया परमात्मा, और आगे इनने सोचिए तो बात बिगड़े, पहले शुरू कर दिया उस पुरुष को, उस परमेश्वर को ये करना था। यहाँ देखो 8वें में उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को यानी बहुत सुंदर तेजोमय शरीर को वह पुरुष यानी वह परमात्मा, जैसा दान दापे बता रहा पुरुष माने परमेश्वर, वह परमात्मा प्राप्त होता है। तो निराकार कहाँ रहा भगवान, ये निराकार कहा करते, यहाँ देखिएगा। और फिर ये भी निर्णय दिया है इसमें, शरीर धारण करता है और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अब यहाँ देखिए 9वां ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में ये मूल पाठ में शिशु नाम है, शिशुम यानी शिशु बालक रूप। अभी अदन्या, अभी इमम अदन्या, यहाँ से पढ़ते हैं उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, सोम माने पुरुष माने परमात्मा को, उस अमर पुरुष को
जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, अभी अदन्या, अदन्या माने बिना दनाई, यानी कभी ब्याई ना हो, यानी उसने टच भी ना करी हो सांड ने बैल ने, तो यहाँ कहते हैं अभी अधन्या, यानी पूर्ण रूप से बिना धनाई। अभी माने सब प्रकार से पूर्ण रूपेण, अधन्या माने यानी कंवारी। अभी अधन्या का अर्थ समझो कंवारी। देनव माने गौवें, कंवारी गौवों से उसकी तृप्ति करती है। भावार्थ है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उसके पालन की लीला, परिवर्ष की लीला कंवारी गौओं से होती है। अंडरस्टूड, इतना ही काफी है। अपने आत्माओं, ये तो वेदों में लिखा है, वेद तो बहुत पुरातन ग्रंथ माने जाते हैं, और परमात्मा ने ये लीला 600 वर्ष पहले की, और प्रत्येक युग में ऐसे ही करते हुए, इसलिए उनको नारायण कहते हैं कि नार माने जल, आयन माने वहाँ विराजमान होने वाला, और भगवान सारे अन्न पानी में रहेगा। कोई नौका तो नारायण है जल में रहता नहीं, वो यहाँ जब आता है एक सरोवर में कमल के फूल के ऊपर, उस जल के ऊपर विराजमान होता है, इसलिए वो नारायण, ये है वो नारायण कबीर साहब। अब ये 600 वर्ष पहले जो लीला हुई थी और लिपिबद्ध की थी धर्मदास साहब जी ने, वो कबीर सागर नाम है उसका, मालिक की लीलाओं का, उनकी वार्ता का। अब कबीर सागर में प्रमाणित करते हैं कि ये लीला भगवान ने खुद देखी थी आके। इन सभी सदग्रंथों से हमने भगवान परमात्मा को पहचानना है, और फिर भक्ति करेंगे डट के, फिर निसंशय होकर के भक्ति किया करेंगे। ये थोड़े से दिन की बात है, पूरे विश्व में ये बात आप पर सेट हो जाएगी कि सचमुच परमात्मा एक ही है, हम एक पिता की संतान हैं। पूरी पृथ्वी पर हम एक ही प्राणी हैं, एक ही पिता की संतान है, और मोक्ष सभी को चाहिए, यहाँ से छुटकारा सबको चाहिए। तो सबको यही साधना करनी पड़ेगी, और कोई विश्व में विकल्प नहीं रहेगा, क्योंकि ज्ञान से जानकारी होती है हमारे को। अब ज्ञान ऐसा निर्मल हो गया, इसमें संशय नहीं रहा कि हु इज गॉड, कौन है वो परमात्मा। कबीर इज गॉड। ये देखो, ये कबीर सागर है, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से। ये कबीर पंथी का ही कबीर सागर, ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, इसके द्वारा संशोधित। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग बंबई। अब इसके इसी ज्ञान सागर में, ये ज्ञान सागर है, और पृष्ठ नंबर 74 पे है, ये पृष्ठ है इनका 74 पे। अब यहां लिखा है, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन अस बोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आव, वही गरीबदास जी ने लिखा है, और वही कबीर सागर में लिखा है। अन्न पानी बखे नहीं, जुल्हा शोक मनावे, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता, रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, और हरि सेवा किन्नी सी बलभाती, कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हा का रूपा, प्रीति प्रभु गही तोर लीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। निरूप को कहा कि तू पिछले जन्म में ब्राह्मण था। रामानंद जी के पास गए कि मेरा लड़का भोजन नहीं खा रहा है, ना कोई दूध पी रहा है, कोई समाधान बताओ स्वामी जी। स्वामी जी ने फिर कारण बताया कि तू पिछले जन्म में ब्राह्मण था, तेने कोई गलती की थी जिस कारण से तू दानक बना, जुल्हा बन गया। उसने कहा मालिक वो तो हुई सो हुई, हे प्रभु 10 की नो तस पायो, मैंने जो किरा सो भर लिया, आरत हो तू दर्शन आयो, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्सुधावंत कुछ खाई। ऐसा विधि बताओ मेरा बच्चा कुछ खा ले। रामानंद युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा, बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा।
रामानंद जी बता रहे हैं कि तेरा पुत्र कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये पिछले जन्म का कोई अच्छा विद्वान पुरुष है, इसलिए इसने पिछली अपनी जानकारी है। और बछिया जाही बैल नहीं लागा, यानी कंवारी गाय जिसने बैल ने कभी टच भी नहीं किया है, और सो ले ठाड करते ही आगा, उसके सामने ले आओ। दूध चले ते थनते दूध धरो छिपाई, अक्षुद्धावंत जब होवे ताके दे खवाई। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। सत ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਤਨਾਮ ਦਾਸ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਮਿਲੇ, ਜਾ ਕੇ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੰਨ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੰਨ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਗੜਦੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਲਾ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜ ਗਏ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ, ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਧਨਾ ਵਗੈਰਾ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਧਨਾ ਸਿੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿਲੇ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਚਿਲਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚਿਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ 41 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਧਨਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦਰਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ 41 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਸਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ TV ਚਲਾਇਆ, ਦੇਖਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੰਬਰ ਲਿਆ। ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਨਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 4 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 4 ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ 4 ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, 4 ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ 4 ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕੋਈ ਲਾਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏ ਹੋਣ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਾਭ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸੇਜ ਆ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਸੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਛਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਰ ਰੋਟੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਸਰ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਭਗਤ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਲਾਭ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਘਰੀਂ ਆਏ,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਲਈ। ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ PGI ਲੈ ਗਏ। PGI ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਸੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਨਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ, ਉਸਨੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ ਸਰ, ਚਮਤਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਲਤ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਵਾਓ। ਸਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰੇਤ ਵਾਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੱਕਿਆ ਹਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੇਲਣ ਲੱਪਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਪਣਾ ਜਾਂ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਪਣਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਨੀ ਮਾਤਾ ਆ ਗਈ ਆ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਸਰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਲੋਨ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਲੋਨ ਲਾਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਲੋਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆ, ਕਾਰਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ ਸਰ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਬੀੜੀਆਂ ਵੀ ਪੀਤੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੀਟ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ? ਸਰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹਟਾਉਣਾ, ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਭੰਗ ਦੀਆਂ ਚਿਲਮਾਂ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ਾ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਵ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਵ ਗਿਆਨ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਦਿਖਾਲਿਆ ਮਸਤਕ ਧਰ ਕੇ ਹੱਥ ਜੀਓ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ? ਸਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਮਸਤਕ ਧਰ ਕੇ ਹੱਥ ਜੀਓ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਵਾਮੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਥਾਨ ਆ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਮਸਤਕ ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਖੁਦ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਟਿੱਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਹੈਗੇ, ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਖੁਦ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਕਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਾ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਜੀ? ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਸਰ ਬਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਗਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਵਾਗੇ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਇਹ ਸਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾ, ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਲੋਨਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਕਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60-70 ਸਾਲ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਮਤਲਬ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਇਹ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਮਾਸਾ ਘਟੇ ਨਾ ਤਿਲ ਵਧੇ, ਬਿਦਨਾ ਲਿਖੇ ਜੋ ਲੇਖ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰੇ ਮੇਖ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਹੋਇਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਆ, ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।